Hello everybody. This video is for defense aspirants. This is for students who are preparing for CDS, CAPF, NDA, AFCAT or any sort of defense exams in general. I think I've covered all of them. Now when we started this channel, we started as defense aspirants and we built a beautiful community of aspirants. Some of them have already joined the services, some of them are still preparing, and some of them have changed the courses of life, of course. Now, why am I making this video today? This is for those who are preparing for defense exams, those students, those aspirants who want to serve the nation, who want to don the uniform on themselves. Now, you could be somebody as young as an 11th or 12th grade student who's preparing for NDA, or this could be someone who is giving his or her last attempt of CDS this year. So this is a general video for all of you. Welcome to Gyanamatics. This is Sumedha Singh and I am an ex-defense aspirant. Just like you a few years ago, I also prepared for these exams and I gave 5 SSBs. So, well, before I talk about these exams, I'm sure you'd want to know about my credibility. So, well, I'm Sumedha Singh and I've cleared CDS and AFCAT. I've cleared CDS for about 4 times and I've cleared AFCAT for 4 to 5 times. Out of all those SSBs, I've only given 5 SSBs and I have been conferenced out in all 5 SSBs. So the good thing here is that the glass is half full. I have never been screened out in my life. But the bad thing here is that I always ended up being conferenced out. But then again, why is this relevant to you? Because I have cleared CDS and AFCAT back to back. I cleared my first CDS when I was in the final year of my college. I am a BTech graduate. I am an electronics and communications engineer. And I cracked CDS first time when I was in my final year. And then I cleared AFCAT also when I was in the final year of my college. And then मेरी cycle चलती रही, CDS to AFCAT, AFCAT to CDS and SSBs देती रही. Now, how can I help you in your preparation? So see, someone who has cleared these exams so many times, I think थोड़ा तो idea मुझे है किस तरीके से इन exams को approach किया जाए. क्योंकि देखिए आज जो एक सिनारियो है सोसाइटी में, मार्केट में, यूट्यूब में, people are selling courses. People are selling so many courses for these exams कि भाई मैंने इतनी बार ये एग्ज़ाम निकाला है तो अब आप मेरा इतने इतने हज़ार का कोर्स ले लीजिए. एंड द थिंग हियर इज दैट दोस कोर्सेज आर वेरी मिनिमल. जो चीज़ आप फ्री में आप यूट्यूब पे उस चीज़ को सर्च कर सकते हो, यू आर पेइंग आई डोंट नो हाउ मेनी थाउजेंड्स ऑफ योर मनी, हार्ड अर्नड मनी ऑफ योर पेरेंट्स और ऑफ योर ओन इन बाइंग दीज कोर्सेज, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है आपको दे रहे हैं. And nobody is talking about the mental health of these aspirants, of these people, जो कि इस साइकिल में फंसे हुए हैं, कभी एग्जाम दे रहे हैं, कभी SSB दे रहे हैं, मेडिकली कभी अनफिट हो जा रहे हैं या कभी मेरिट आउट हो जा रहे हैं. Nobody is talking about the trauma that these people, these students, these young kids who are at such an impressionable age are going through. So this video is for you. And this is for a community of aspirants that are so close to our heart, especially my heart, because मैंने इस community से बहुत बच्चे हैं जो recommend होते देखे हैं, those who have already joined the services. And this is something that we started our YouTube for. So anyway, now, before we begin with this video, इस पूरी cycle के बारे में discuss करने से पहले, I would want कि आप खुद से पूछें why do you want to join these services? क्योंकि क्या होता है कि जब आप इतनी बार रिजेक्शंस फेस करते हैं तो आप कितना जल्दी बाउंस बैक करते हैं वो डिपेंड करेगा ऑन योर वाई, हाउ क्लियर योर वाई इज. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मेरी जो सबसे पहली SSB थी, CDS मैं जैसे कि बता चुकी हूँ, मेरा सबसे पहले CDS ही क्लियर हुआ था. सो माई फर्स्ट SSB वॉज 21 SSB भोपाल. ओके, अब इस 21 SSB भोपाल में अराउंड 200 to 250 गर्ल्स जो थी उन्होंने रिपोर्ट किया था. और इस 200 से 250 लड़कियों की भीड़ में जो स्क्रीन इन हुई वो हुई केवल
20 लड़कियां, ओनली 20 गर्ल्स वर स्क्रीन्ड इन आउट ऑफ अराउंड 240 to 250 गर्ल्स दैट आर रिपोर्टेड. इन 20 लड़कियों में से 10 लड़कियां थीं जो कि फ्रेशर थीं और 10 लड़कियां थीं जो कि रिपीटर थीं. आई वॉज अ फ्रेशर हियर, तो सिर्फ 2 ही ग्रुप्स बने थे. और इन 20 लड़कियों में से सिर्फ 2 लड़कियां थीं जो recommended थी. आई वॉज कॉन्फ्रेंस्ड आउट इन दिस SSB. नाउ इन 2 लड़कियों में से एक लड़की थी जो मेरी दोस्त बन चुकी थी. ऑफ कोर्स शी वाज अ रिपीटर, बट स्टिल वो मेरी फ्रेंड बन चुकी थी. सो आई न्यू हर ऑन फर्स्ट नेम बेसिस एंड ऑफ कोर्स शी वाज अ फ्रेंड. तो CDS की SSB के बाद मेरी नेक्स्ट SSB होती है 1 महीने के बाद इन वाराणसी. सो आई हैड माई AFSB इन वाराणसी. ठीक है. अब यहाँ पे आई मीट दिस वन गर्ल जो कि इन 2 लड़कियों में से एक थी जो कि रिकमेंडेड थी. आई मीट हर अगेन 1 month लेटर इन वाराणसी. यहाँ पे आई गेट स्क्रीन इन अ लॉट ऑफ गर्ल्स. आई थिंक इस बार तो 50 लड़कियाँ स्क्रीन इन हुई थी. AFCAT में AFSBs में थोड़ा ज़्यादा अमाउंट में स्क्रीन इन कर लेते हैं. सो अराउंड 50 गर्ल्स वर स्क्रीन इन. उन 50 लड़कियों में ये एक रिकमेंडेड लड़की नहीं थी. शी वॉज रिकमेंडेड अ मंथ अर्लियर and 1 महीने के बाद she was not even screened in. Is it because she did not have OLQ in her? No. She was recommended a month earlier. That means उसमें officer like quality तो थी ही यार. 1 महीने में quality disappear तो हो नहीं जाती. So the point that I'm trying to make here is that SSBs are a game of luck to some extent. अगर आपका दिन अच्छा है आपका OLQ दिख जाएगा. अगर आपका दिन अच्छा नहीं है तो शायद आप उस दिन उतना शाइन ना कर पाए. इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ग्रुप, जो ग्रुप आपको असाइंड है. बहुत बार ग्रुप्स वॉश आउट हो जाते हैं. डायरेक्ट एंट्रीज में ये ज़्यादा होता है, जैसे कि NCC या फिर टेक्निकल एंट्रीज होती हैं. बट द थिंग हियर इज दैट दिस इज अ वेरी डाइसी गेम. ऐसा नहीं है कि आप रेकमेंड हो चुके हैं तो भाई आप में OLQ है जो हर बार दिखेगा. इज नॉट नेसेसरी. और जस्ट बिकॉज यू आर स्क्रीन्ड आउट टुडे डज नॉट मीन आप में OLQ नहीं है एंड यू कांट कम. मे बी आप अगली बार रेकमेंड हो जाए. मैंने ऐसे भी बहुत केसेस देखे हैं. सो द थिंग हियर इज दैट व्हेन समथिंग इज सो अनसर्टन, कुछ बच्चे हैं जो मेडिकल पहुंच के अनफिट हो जाते हैं. कुछ ऐसे हैं दैट दे मेक इट, दे डू नॉट फाइंड देयर नेम्स इन द फाइनल मेरिट just because they were not able to score very well in the written examination or they were not able to score very well in the SSBs. So there is rejection at every stage and it becomes very traumatizing. Because this whole cycle will take about a year or 2 of yours. And God knows how much of your mental health would be taken too. So how quickly you bounce back will depend upon why you started this journey. So if you're starting this journey just because you are looking forward for a glamorous lifestyle, you might not be able to sustain in the journey. But if you are somebody who knows that this is your passion, somebody who knows that you want to serve the nation by wearing that uniform, you know, it will become very easy for you to face that rejection, get hurt of course, and then get up and bounce back again. So this is why before you begin preparing for any exam, I'm not just talking about this exam, but any exam, it is very important to understand why you started preparing. Alright. So ask yourself, why are you preparing for this? Because you might end up wasting very resourceful years of your life after this exam, after this entire process. Ask yourself, is it worth it? Does it align to how you see your lifestyle maybe 10 to 20 years later in your life? Ask this question to yourself. Anyway, अब इसके बाद देखो यार बहुत से stages होते हैं. Now I have seen a lot of kids who are damn talented. These kids are very talented but they're not able to clear exams for CDS or CAPA for ND और AFCAT और वो साइकिल में फंसे रह जाते हैं. The reason here is क्योंकि देखो syllabus बहुत simple है यार, but people today have made it very complicated. क्या होता है कि मान लो CDS की बात करते हैं तो 100 questions हैं. मॉडर्न हिस्ट्री में मान लो 100 में से 20 से 30 क्वेश्चंस, तो मतलब मान लो मॉडर्न हिस्ट्री का टोटल 100 में से 20-30 क्वेश्चंस मान लो कुछ बहुत ही अजीब से अतरंगे से आ जाएंगे जो कि आपको आपकी स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं मिलेंगे. अब बच्चे क्या करने लगते हैं कि इन 20 से 30 क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए पता नहीं कौन सी रैंडम बुक्स पढ़ना शुरू कर देंगे जस्ट बिकॉज उनको ये 20 से 30 क्वेश्चंस दिख रहे हैं बट उन्हें बाकी 80 से 70 क्वेश्चंस नहीं दिख रहे जो कि उनकी स्टैंडर्ड बुक्स से सॉल्व हो जा रहे हैं. इन 20 से 30 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बहुत से लोग हैं जो यूट्यूब पे बड़ी
महंगे महंगे कोर्सेज बेच देंगे और बच्चे इन 20 से 30 क्वेश्चंस में उलझे रह जाएंगे. बट द कट ऑफ इज नॉट बीइंग डिसाइडेड बाय दीज 20 to 30 क्वेश्चंस. क्योंकि अगर वो 20 से 30 क्वेश्चंस इन स्टैंडर्ड बुक्स में नहीं है ना, तो वो किसी को नहीं आ रहे हैं. यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज वेरी सिंपल टू कीप थिंग्स वेरी सिंप्लीफाइड इन योर प्रेपरेशन. कि यार जीएस में जो स्टैंडर्ड किताबें हैं उन्हें ही पढ़िए. ये ऐसे क्वेश्चंस डाले ही इसलिए जाते हैं ताकि एग्जाम का एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाए. अगर 100 में से 90 मार्क्स हर कोई लेना शुरू कर देगा तो एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या रह जाएगा? एंड द कट ऑफ इज नॉट गोइंग 90, द कट ऑफ इज नॉट गोइंग 80 ईदर. द कट ऑफ इज वेरी लो. यू ओनली हैव टू क्लियर द कट ऑफ एंड हाँ थोड़ा डिसेंट स्कोर लेना है ताकि मेरिट में बढ़िया मार्क्स ले लें. एंड आई अश्योर यू ये 70, 80 या 60, 70 क्वेश्चंस में भी बढ़िया करके आप मेरिट में इन हो सकते हैं. ठीक है, यू डोंट हैव टू बाय वेरी हेक्टिक एंड वेरी हेफ्टी कोर्सेज फॉर दिस. जीएस में आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो. देखो जीएस ना आपकी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. आपका स्टैटिक है एंड आपका करंट है. ठीक है, स्टैटिक पोर्शन जो है उसमें आपका, मुझे तो लगता है यार सबसे स्कोरिंग, पर्सनली मुझे पॉलिटी और इकोनॉमी बहुत स्कोरिंग लगती है. इकोनॉमी इसलिए क्योंकि इंडियन इकोनॉमी इज समथिंग कि आपको अगर एक बार बेसिक फंडामेंटल्स पता है ना, सो नो मैटर क्वेश्चन जो भी आए यू कैन नेवर गो रॉन्ग. अनटिल एंड अनलेस ऑफ कोर्स वो फैक्चुअल क्वेश्चन है कि जीडीपी कितनी है या कंट्रीब्यूशन कितनी है. यूपीएससी सीडीएस जो है यूपीएससी ही डालती है. तो जो इकोनॉमी के क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं और आपको या तो कॉन्सेप्ट पता है या नहीं पता है. तो मेरे लिए तो आई थिंक मेरा पर्सनल फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमी है. उसके बाद देखिए पॉलिटी. पॉलिटी में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस आते हैं यार. पॉलिटी में कभी होता है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, अगर वो आपको नहीं आ रहा तो और किसी को नहीं आएगा. ठीक है, यू कैन रेस्ट एश्योर्ड फॉर दैट. पॉलिटी बहुत प्रिडिक्टेबल है, इकोनॉमी प्रिडिक्टेबल है अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स एनालाइज करें. अनप्रिडिक्टेबल जो होता है वो होता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री, वो होता है आपका आर्ट एंड कल्चर, जिसे हम प्यार से ANC भी बोल देते हैं. वो होता है आपका मिडीवल, आई बेग योर पार्डन. ये जो है इनमें से यार कुछ भी आ सकता है. इसमें से तो पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज उन्हें भी बोला जाता है कि भाई अगर 15 क्वेश्चंस में से यू आर ओनली एबल टू डू 6 से 7 क्वेश्चन भी अगर बढ़िया कर ले रहे हो ना, तो आपने अपनी जिंदगी में कुछ अचीव कर लिया है. आई मीन दैट इज एग्जैक्टली द रैंडमनेस ऑफ द क्वेश्चंस दैट कम्स फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है, तो यू शुड नेवर बी डिसहार्टेंड कि भाई मेरे को तो इसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे, मैंने तो इतना पढ़ लिया. स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, इंपॉर्टेंट चीजें पढ़िए, जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो रिपीट होती हैं. जैसे कि ANC में यार क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए. ठीक है, शुंगा कब आए, कानवा कब आए, मौर्यन एम्पायर कब तक था, गुप्ता एम्पायर कब तक था. ठीक है, अजंता एलोरा कब बनी, किन किन की कॉन्ट्रीब्यूशंस थी, क्या अजंता प्योरली बुद्धिस्ट केव थी या फिर सेक्युलर केव थी, एलोरा किस तरह की. सिंपल सी चीजें हैं यार, एक बार पढ़ना शुरू करोगे ना तो इतना मुश्किल नहीं है ये. ठीक है, सिंपल चीजें पढ़नी है, बहुत कुछ नहीं पढ़ना. एक बार जब आप ये थीम्स आइडेंटिफाई करोगे ना तो जीएस ना आसान हो जाता है. और माइंड यू कट ऑफ काफी कम जाती है सीडीएस की. ठीक है, काफी कम जाती है सीडीएस की कट ऑफ. आपको तो कट ऑफ ही क्लियर करनी है ना यार. इंग्लिश देखो, AFSB में इंग्लिश इज वोकैबुलरी बेस्ड. तो वोकैबुलरी के ऐसा करो कि दिन के 10-10 वर्ड्स भी नए नए अगर आप वोकैबुलरी में सीख रहे हो ना, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देख लो कि वोकैबुलरी से क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं. इफ यू आर एबल टू डू दैट, आप वोकैबुलरी की भी 60 to 70% स्ट्राइक रेट आपका हो जाएगा वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस में. सीडीएस में ऑफ कोर्स इंग्लिश इज वेरी इजी, मोस्टली ग्रामेटिकल है एंड द ग्रामर इज ऑल्सो वेरी इजी. बट ऑफ कोर्स इट्स गोना बी टफ फॉर पीपल जो कि हिंदी मीडियम से आते हैं, उनके लिए इंग्लिश कैन बी अ लिटिल टफ. अपार्ट फ्रॉम दैट इंग्लिश इज स्कोरिंग बढ़िया है. इंग्लिश में अपना अटेम्प्ट अच्छा रखेंगे सीडीएस में. मैथ्स के लिए देखिए दिक्कत आती है एनडीए वाले बच्चों को या सीडीएस वाले, उनके लिए जो आईएमए वगैरह के लिए पीपल हु आर यू नो होपिंग कि उनको आईएमए या फिर एएफए जाना है, तो उनके लिए मैथ्स जो है 11th-12th लेवल की है. सो इफ योर मैथ्स इज गुड, मैथ्स में बढ़िया स्कोर खींचिए. तो जीएस में आप थोड़ा कम भी स्कोर हो तो भी चल जाता है. ठीक है, अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है तो. अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है तो ऑफ कोर्स यू हैव टू कॉम्पनसेट इट फ्रॉम योर जनरल स्टडीज. बट देन अगेन मैथ्स में भी मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आप प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स देखेंगे टॉपिक वाइज, फॉर एग्जाम्पल कैलकुलस से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप वो भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आई थिंक आपकी काफ़ी हद तक तैयारी जो है मैथ्स की हो जाती है फॉर सीडीएस एग्जाम, इवन फॉर एनडीए फॉर दैट मैटर. ठीक है, सो
इस तरीके से एग्ज़ाम की वी आर प्लानिंग टू ब्रिंग वीडियोज़ अबाउट दैट. हम सोच रहे हैं कि विल ब्रिंग रिविजन वीडियोज़. ना द थिंग हियर इज़ कि जो वीडियोज़ हम लाएंगे स्टार्टिंग की, दे आर नॉट गोइंग टू बी वैसी कैची सी वीडियोज़ नहीं होंगी कि टॉप 50 क्वेश्चंस या मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस फॉर हिस्ट्री और मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस फॉर पॉलिटी. आई थिंक दैट इज़ वेरी यूजलेस एंड दैट इज़ मेकिंग अ फूल आउट ऑफ यू. क्यों? क्योंकि यार मैं आपको 50 क्वेश्चंस बोल रही हूँ पॉलिटी के कि ये पढ़ लो और आपका भाई सब कुछ अच्छा हो जाएगा. मैं उस 50 में से 40 क्वेश्चंस में से फंडामेंटल राइट्स के ही क्वेश्चंस डाल रही हूँ. आई एम नॉट आस्किंग यू क्वेश्चंस अबाउट कमिटीज, जो कि माइंड यू यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है पॉलिटी से. और आप सोच के जा रहे हैं कि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं बस मैंने ये कर लिया और मेरा पॉलिटी हो गया. तो यू आर बिकमिंग अ फूल. आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं उस चीज़ में. सो आई एम प्लानिंग टू क्रिएट वीडियोज जो कि इन सारे डिफेंस एग्जाम्स को टारगेट करे. एंड पॉलिटी जितनी ज़रूरत है उतनी ही पढ़ी जाए, बट इन अ वे कि जो इंपॉर्टेंट थीम्स हैं पॉलिटी की, जो थीम बेस्ड हम तैयारी करेंगे. ठीक है, जो थीम्स हैं पॉलिटी की, इकोनॉमी की, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें हम आपके पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे और हम वो थीम्स डिस्कस करेंगे और उनके शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स जो हैं वो हम अपने चैनल पे पोस्ट करेंगे, ताकि आपकी रिवीजन भी हो, आप पढ़ भी रहे हैं अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, और आपको रिवीजन का भी साधन मिले. क्योंकि देखो, पढ़ो वो चीज़ जिसको रिवाइज कर पाओ. ठीक है, सो इफ आई एम टीचिंग यू समथिंग आई विल मेक श्योर दैट आई ऑल्सो प्रोवाइड यू नोट्स. ओके, सो एनीवे ये तो पढ़ाई की बात हो गई. उसके बाद देखिए आपका वंस यू हैव क्लियर दिस एग्जाम यू विल बी कॉल्ड फॉर एसएसबी. एसएसबी में भी बहुत स्टेजेस हैं जहाँ पे सबसे पहले तो यार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही होती है. एंड आई हैव सीन सो मेनी गर्ल्स, सो मेनी एस्पिरेंट्स जिनको वापस भेज दिया जाता था जस्ट बिकॉज उनके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली अलाइंड नहीं होते थे टू द डिमांड. ये बहुत बड़ी गलती है जो एस्पिरेंट्स करते हैं. डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं उनके पास, लाना भूल जाते हैं एंड सैडली वो निकाल दिए जाते हैं. ठीक है, उसके बाद एसएसबी में नेक्स्ट स्टेज ऑफ रिजेक्शन है स्क्रीनिंग. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू रेशो कितना कम होता है स्क्रीनिंग में. ऑफकोर्स डायरेक्ट एंट्रीज में जाओगे तो ये तो रेशो ऑलमोस्ट जीरो ही हो जाता है. बट अगर आप ये एग्जाम्स क्लियर करके जाते हैं सीडीएस या एनडीए या सीएपीएफ एंड एफकैट, तो आपका सीएपीएफ में तो यार रिकमेंडिंग रेट काफ़ी ज़्यादा होता है. सीडीएस एफकैट में थोड़ा कम होता है, बट इट इज़ स्टिल बेटर देन डायरेक्ट एंट्रीज. ठीक है, एंड देन यू हैव योर फाइनल कॉन्फ्रेंस. नाउ आई नो a lot of you will think and a lot of you will go to SSBs with the mindset कि यार आर्मी नहीं तो कुछ नहीं, एयरफोर्स नहीं तो कुछ नहीं, नेवी नहीं तो कुछ नहीं. I think this is a very stupid mindset. I really think so. Because if even अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, even if you want to be a part of the defense forces, you should never have this mindset कि अगर ये नहीं तो कुछ नहीं. Of course you should have your focus towards a goal, but as somebody who is going to be in a position, if you join the forces and you're going to be in a position जहाँ पे आप do or die mode में होंगे, you will always be required to have a backup. You will always be required to have something as a security net, not just for yourself but for your teammates. आपकी real life में आपके teammates कौन है? Your family, your friends. तो अगर आप इस मेंटालिटी से जा रहे हैं कि आई एम ओनली प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, सीएपीएफ, एफकैट और मैं और किसी चीज़ की तैयारी नहीं करूँगा, आई विल डू नथिंग एल्स, तो आप ना सिर्फ अपना खुद का फ्यूचर रिस्क में डाल रहे हैं, बट आप अपनी फैमिली का फ्यूचर भी रिस्क पे डाल रहे हैं. यार, यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू नीड टू हैव अनदर बैकअप्स इन योर लाइफ. सो दिस इज समथिंग जो बहुत लेट पता चलती है बच्चों को. इस एज में यू आर एट अ वेरी इंप्रेशनेबल एज और इस एज में लगता है कि ये नहीं तो कुछ नहीं. बट आई थिंक लाइफ गोज ऑन आफ्टर दिस एग्जाम. योर लाइफ इज वे मोर देन दिस एग्जाम. ये हो जाए तो भी अच्छा, यू गिव योर 100% टू इट. अदरवाइज ऑलवेज हैव समथिंग एल्स इन योर माइंड कि ये नहीं तो मैं और क्या करूँगा. Alright, so I think I have already made quite a long video, but this video is specially dedicated to this community of our subscribers for this channel, जो कि बहुत लंबे टाइम से हमारे साथ जुड़े हैं. And after a really long interval of time, I have made a video for defense aspirants. And anyway, we are beginning to do something for you people. We are beginning a new initiative for you. So अगर आप अभी तक पढ़ रहे थे तो well and good. अगर आप अभी नहीं पढ़ रहे थे so come study with us. ठीक है, come and prepare with us. Come and prepare with us. Give your best. उसके बाद जो होगा we'll see. Okay. So signing off, this is Sumedha Singh and we'll meet again hopefully in the next video. If you have any queries
So please drop them in the comment section. We will also, we are planning to make a separate Telegram group for the defense community. So anyway, tell us how you feel about the video in the comment section. And thank you very much, and we'll meet again in the next class. Thank you.